आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा जो मैंने पढ़ाया था। और एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है। अगर चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पहले पूछ सकते हैं, बाकी मैं तो एक रिवाइज करवा ही रहा हूँ। सबसे पहले, व्हाट डज इकोनॉमिक्स मीन? So economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce resources in such a manner that the consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and the society can maximize their social welfare. Scarcity and choice, if we'll talk about the scarcity, is a situation where the demand is more than supply, and choice is the process of selection for the limited alternatives from the limited alternatives. Emergence of choice is arised. Why do choice arise? Choice arises due to two causes, due to two reasons, that is, resources are scarce and resources have alternative uses. What does microeconomics mean? Microeconomics is that branch of economics which deals with that branch of economics which studies the activities relating to the individuals, है ना? Individuals. And what does macroeconomics mean? Macroeconomics is that branch of economics which studies economic activities related to economy as a whole. Related to economy as a whole. जब country level बात करते हैं तो वो macroeconomics हो जाता है. Positive economics. Positive economics includes the facts. It includes the facts, the economic issues or the economic problems. It studies relates to the economic issues which are the subject to verification. And what are the things which are subject to verification? Only the facts are subject to verification. So positive economics deals with the facts and the datas, while normative economics is related with the opinions or the suggestions. These are not the facts, but these are the value judgments. Normative economics includes value judgments. After that, what does economy mean? Economy is a system. Economy is a system spread over a particular geographical area which decides the nature and level. ये definition मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, तो I hope आप लोगों ने अपनी copies में से लिखा होगा और आप लोग उसे पढ़ रहे होंगे. So economy is a system spread over a particular geographical area which decides the nature and level of its economic activities, that is प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. ये डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन नहीं है, आपको आपके टीचर ने नहीं लिखवाई होगी. इस तरह की डेफिनेशन कुछ अलग लिखवाई होगी इकोनॉमी की डेफिनेशन. लेकिन मैं जो इकोनॉमी की डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये बहुत ही सिंपल और जस्टिफाइड डेफिनेशन है. इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया which decides the or determines the nature and level of where varied economic activities, that is production, consumption, investment, and exchange. Then we do have different kinds of economies: market economy, centrally planned economy, and we do have the mixed economy. Market economy is a kind of economy where the major economic decisions are taken by the market forces, that is consumer and producer. While in the centrally planned economy, there is a more government intervention and government takes the major economic decisions. In the mixed economy, few decisions are taken by the market forces on the basis of profit maximization, and few decisions are taken by the government on the basis of social welfare. So this was all about the revision part of this chapter. बाकी इसमें काफी सारे MCQs, fill in the blanks and short answer, long answer questions दे रखे हैं. PDF में ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, तो आप इसे पढ़िएगा जरूर, और पढ़ने के बाद में कोई भी डाउट्स अराइज होते हैं तो आप अपने पूछ भी सकते हैं. चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो वैसे तो हमने पढ़ा था दैट एवरी इकोनॉमी हैज सर्टेन इश्यूज. इट मींस एवरी कंट्री हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स. नाउ एवरी कंट्री हैज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम, इंडिया की प्रॉब्लम, बांग्लादेश की प्रॉब्लम, US की प्रॉब्लम और UK की प्रॉब्लम सबकी सेम होगी. Every country has, though every country has their problems, but every country has certain different kinds of problems and they have
certain central problem, that is central issue. हर कंट्री की एक जो मेन प्रॉब्लम होती है उसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं. सो हमारे कंट्री में मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? आवर कंट्री इज हैविंग अ main central problem which arises due to again scarcity of resources, and resources has alternative uses. These are the two causes which gave rise to the economic problem. And what is an economic problem that we have to study in this chapter? What are the causes of the economic problem that we have to study in this chapter? And after that, the three kinds of central problems that we will also study. What are the three central problems in our economy? These are what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are the three central problem of our economy. Okay, just hold on students. देव क्लास में हूँ, अगर कुछ अर्जेंट नहीं हो तो मैं बाद में कॉल करूँ. हाँ सर चलेगा. मैं 10:30 बजे कॉल करता हूँ. ठीक है. हाँ, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब कुछ. ठीक है. चलिए, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सबसे पहले हमारी शुरुआत इसी से करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मीनिंग होता है. वैसे तो इकोनॉमिक का मीनिंग आप जानते होंगे, इकोनॉमिक मींस रिलेटेड टू मनी. प्रॉब्लम तो सबको पता है क्या होता है. तो अब हमें समझना है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें जो चॉइस करना है. चॉइस का मतलब क्या होता है? सपोज करें मैं आपके सामने दो वैरायटी ऑफ डिशेस, कोई भी दो खाने की चीजें रखूं और मैं कहूं इसमें से कोई भी एक आपको खानी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चूज आइदर ऑफ द टू. दो आइटम मैंने आपके सामने रखे. फॉर एग्जांपल, दो चॉकलेट्स मैंने आपके सामने रखा है और मैंने कहा आपको कोई एक इसमें से चूज करनी है. सो दिस इज कॉल्ड मेकिंग अ चॉइस. चॉइस कब करना होता है? चॉइस जब हमें करना पड़ता है जब हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हों और जब उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हों. सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आप चाहे तो लिख सकते हैं, व्हाट डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन? व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अगर सिंपली क्वेश्चन आता है what is economic problem or what does economic problem mean, so आप क्या लिखेंगे आंसर? that economic problem is a problem of choice. ठीक है. उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? which arises due to two reasons or two causes. ठीक है. Economic problem is a problem of choice which arises due to two causes. आई होप आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं जो मैंने लिखा है. क्या लिखा है मैंने? What does economic problem mean? Economic problem is a problem of choice which arises due to two causes. अब मुझे कौन बताएगा कि वो two causes क्या है? जो भी आप में से ट्राई करना चाहें. What are those two causes which give rise to economic problem? कोई है जो बता सके? What are the two? जी बोलिए, सुन रहा हूँ. लिमिटेड रिसोर्सेज. हाँ, एक तो और अनलिमिटेड वांट्स. वो तो बात एक ही हो गई ना. लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स तो एक सी ही बात होगी, मिलती जुलती ना. तो देखिए लिमिट. अल्टरनेटिव यूज. हाँ जी बिल्कुल, ये दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है. कौन बोल रहे हैं आप? पूजा बोल रहे हैं? यस सर. जी. तन्वी आप भी ट्राई किया करो, अगर आप गलत भी आंसर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश जरूर किया करो. ठीक है. सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सबसे पहली बात, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये चॉइस जो करना है वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. अब व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ड्यू टू
रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। पहली बात तो रिसोर्सेज कम है और उनके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर कम होने के बाद भी एक ही यूज हो तो कोई टेंशन नहीं है, जो है उसको यूज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो ये है कि रिसोर्सेज पहली कमी है और उनके यूजेस फिर बहुत सारे हैं। और यही चीज क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज करता है। देखिए यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे रीड कर लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। पिंक कलर में लिखा हुआ है, बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा वही आगे लिखा हुआ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। इस सेंटेंस को समझा आपने, क्या लिखा है इसने, समझने की कोशिश करें इस सेंटेंस को। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज। इकोनॉमिकल यूज का मतलब होता है संभाल के इस्तेमाल करना किसी चीज को। इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो इसलिए उनको बहुत सोच समझ के संभाल के इस्तेमाल करना, वेस्टेज ना करना, दैट इज मेंट बाय इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये सारा आपको। आगे बढ़ते हैं, कहीं भी कोई डाउट लगे ना तो बीच में आप पूछ भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है मैं कहूँ कि भी कोई डाउट हो तो पूछो तभी आप पूछें, आप बीच में किसी भी स्टेज पे डाउट्स पूछ सकते हैं। वैसे रेयरली ऐसा होता है कि सिर्फ एक दो स्टूडेंट को मुझे पढ़ाना पड़े, अदरवाइज थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, तो क्लास थोड़ी लाइवली लगती है। पहली बार ही होगा शायद जो सिर्फ एक दो स्टूडेंट को पढ़ाने की सिचुएशन है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। देखिए तो क्या लिखा है, ग्रीन कलर का बॉक्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो वो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इट अराइजेस ड्यू टू टू रीजंस, है ना। तो वही अब आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्हाई डू इट अराइज, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इट अराइज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, है ना। स्कैर्स रिसोर्सेज बोले या अनलिमिटेड वांट्स बोले, एक ही बात हो गई। तो अनलिमिटेड वांट्स पहला रीजन है इसका, और दूसरा क्या होगा इसका, दैट इज, इसको अपन स्क्रॉल कर देते हैं। फर्स्ट रीजन इज देयर इज अनलिमिटेड वांट, एंड second is we have limited and scarce resources. So this is the second cause. So these two causes we have to keep in our mind. Why do economic problem arises? Economic problem arises due to unlimited wants and the limited and scarce resources. Resources कम है, wants ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉक हो जाती है इसकी। एक थर्ड पॉइंट और लिखा हुआ आ गया, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अल्टरनेटिव यूजेस वाला, है ना। तो सिर्फ 2 पॉइंट याद मत रखना आप लोग, टोटल 3 पॉइंट अपने माइंड में याद रखना। दैट व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू 3 रीजंस। फर्स्ट रीजन इज अनलिमिटेड वांट्स, second reason is limited and scarce means or limited and scarce resources, and the third reason is alternative uses, that is resources have alternative uses. These are 3 reasons why do economic problem arises. ठीक है, अब आते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पे। अब अक्सर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और सेंट्रल प्रॉब्लम, वो मैंने आपको क्या बताया, वो सेंट्रल प्रॉब्लम हर कंट्री के अलग अलग हो सकती है। इंडिया के सेंट्रल प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकती है, यूएस की सेंट्रल प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकती है। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ दैट इकोनॉमी, ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो क्या लिखा है देखिए, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 मेन प्रॉब्लम्स, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो वैसे तो सभी कंट्रीज के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ
प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर कंट्री में सिमिलर है। वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसर गुड्स। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या डिसाइड करेंगे? द चॉइस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। क्योंकि कंज्यूमर गुड्स से किसकी डिमांड्स फुलफिल होंगी? करंट पॉपुलेशन की। और प्रोड्यूसर गुड्स से किसकी डिमांड्स फुलफिल होंगी? फ्यूचर जनरेशन की। ठीक है, तो सबसे पहला तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या डिसाइड करना है? वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हमें क्या डिसाइड करना है? वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और टू यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आई होप लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के मीनिंग आप लोग समझते होंगे। जहाँ पे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखते हैं और लेबर कम होती है, वहाँ उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, लाइक मशीन्स वगैरह का यूज़ अगर करें तो। और जहाँ पे वर्कर्स वर्क करते हैं मशीनरीज पे ना करके मैन्युफैक्चरिंग हैंडमेड गुड्स होता है, तो उसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या बात आती है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट जनरेशन वर्सेस फ्यूचर जनरेशन। whether to produce for present generation or for the future generation। और सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है whether to produce for the rich or poor, whether to produce goods for the rich class of the economy or the poor class of the economy। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनकी आंसर्स होते हैं या ये डिसीजंस हमें इनमें लेने होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में whether to produce consumer goods or to produce producer goods। how to produce में whether to use labor intensive technique or to use capital intensive technique। and for whom to produce में whether to produce for the present generation or to produce for the future generation, whether to produce for the rich that is sorry you can say higher income group of the society or to produce for the weaker section of the society। रिच एंड पुअर का वो भी डिसाइड करना होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपॉर्चुनिटी आपको दे रखी है, किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं ना। आप लोग नहीं पूछते हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आता जा रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जो ये PDF मैंने आपको दे रखा है, मीन्स बुक मैंने आपको शेयर कर रखी है, तो इसको आफ्टर द क्लास डेली पढ़ा जरूर करें आप लोग, जिससे कि आपको रिकॉल होगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो इसमें लिखा हुआ है ना, वो पढ़ा जरूर करें आप लोग। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या लिखा है? दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो दो मेनली इसमें आपको डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस के क्या प्रोडक्शन करना है, और उसके बाद में दूसरा डिसीजन के कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। तो मेनली इसके कह सकते हैं आप कि टू पार्ट्स हो जाते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दैट इज इन व्हाट क्वांटिटी वी हैव टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या डिसाइड करेंगे। इसमें हम डिसाइड करेंगे वेदर टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर गुड्स। क्योंकि अगर आपने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया है तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर आपने प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस किया यानी कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तो वो तो फिर कंज्यूमर के लिए यूजफुल है ही नहीं। तो वेदर टू यू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स से कंज्यूमर की नीड्स फुलफिल होंगे और कैपिटल गुड्स तो
फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, करंट जो पॉपुलेशन है उसके लिए कोई यूजफुल वो नहीं होगा। तो ये डिसीजन हमें लेना पड़ता है। इसके बाद में बात क्या आ रही है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। आपने चलिए डिसाइड कर लिया कि नहीं हमें कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए और हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए, दोनों की जरूरत है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों को कितना कितना हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो कितना कितना हमें प्रोडक्शन करना है वो भी दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स दोनों चाहिए तो उसका प्रपोर्शन कितना हम रखें। तो वो आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि मैंने आपको बताया था द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मीन्स whether to use labor intensive technique or to use the capital intensive technique। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा ठीक है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा ठीक है। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का मीनिंग तो जानते हैं ना आप लोग। लेबर इंटेंसिव का मीनिंग वो होता है कि ऐसी टेक्निक जिसमें वर्कर्स ज़्यादा होंगे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा और वर्कर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और वर्कर्स कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एटीएम मशीन लगाया है तो ये कौन सी क्या टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। लेकिन मैं एटीएम ना लगा के अपने बैंक की ब्रांच में 4 एम्प्लॉयज ज्यादा अपॉइंट कर दूं, 4 काउंटर ज्यादा लगा दूं जिससे लोग वहां पे आके मनी विड्रॉ कर सकें, तो ये कौन सी लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गई कि मैंने ज्यादा एम्प्लॉयज को रखा तो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन मैंने एक महंगी एटीएम लगा दी तो ये कैपिटल इंटेंसिव हो गया। तो अब आप बताएं मुझे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटर है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बेटर है, कौन सा यूज करना चाहिए हमें। बोला करें आप लोग कुछ ना कुछ सही गलत जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक हो ना आंसर जरूर दिया करें। ऐसे चुप रहेंगे तो आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा और मुझे तो बिल्कुल भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ना तो आप लोगों को मैं देख सकता हूँ, आप लोग बोलोगे भी नहीं, तो फिर वो एक बहुत बोरिंग सा क्लास हो जाता है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ बता के। दैट इज नो कंट्री कैन चूज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एज इट वांट्स। Every country has to take decision based over certain other factors. For the densely populated country like India, for the densely populated country like India, labor intensive technique is recommended and preferable, while for the sparsely populated country like USA, for the sparsely populated country like USA, which is abundant in capital resources, capital intensive technique is a better one। तो ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से डिसीजन ले लें। अगर इंडिया जैसे कंट्री में हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो यहाँ पे वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और अगर यूएस जैसे कंट्री में हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स इतने है ही नहीं, लेबरर्स इतने है ही नहीं, पहले पॉपुलेशन कम है। देयर वी नीड टू मेक यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दोनों में से कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करता है किस पे, कंट्री की कंडीशन। और लास्ट इसमें आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मैंने आपको बताया था वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द प्रेजेंट जनरेशन और टू प्रोड्यूस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द high income group or to produce for the low income group, whether to produce for the rich or to produce for the poor. Because for the rich people, for the rich people we will produce what, for the rich people we will produce comfort and luxurious goods. For the rich people we will produce the comfort and luxurious good, while for the poor people, for the low income group people, we have to produce the basic necessity goods. तो अगर लो इनकम ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो नेसेसिटी गुड्स का नंबर आएगा, अगर हाई इनकम ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो कंफर्ट एंड लग्जरियस गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस डिसीजन इज आल्सो important. So these three comes under the central problem of the economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, why do the central problems arise in all the economies, whether rich or poor? So because resources are scarce in all the economies. ऑल द इकोनॉमीज में रिसोर्स आर स्कैर्स हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसी कंट्री में कोई रिसोर्स है, किसी कंट्री में कोई रिसोर्स है। लाइक जो अपने गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑयल वेल्स हैं। जो इंडिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर और कैटल रिसोर्स अच्छे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे कैपिटल रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो हर कंट्री में कोई ना कोई रिसोर्स अबंडेंस में होता है और कोई ना कोई रिसोर्स स्कैर्सिटी में होता है। So because resources are scarce in all the economies, whether rich or poor, and resources always have an alternative uses. This is the reason that central problem arises in all the economies. Second question is, what happens if resources do not have alternative uses? अगर किसी रिसोर्स का एक सिंगल यूज होगा तो फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज कहाँ पे होती है? जहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। बिकॉज where the products or the goods have alternative uses, where the resources have alternative uses, then we have to produce certain things and we have to forgo the other one. हमें उस रिसोर्स को एक यूज में लेना होता है और किसी एक यूज को हमें छोड़ना भी पड़ता है। बहुत एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं। 9 बजे से 9:30 बजे तक डेली मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मान लीजिए आप अकाउंटेंसी की ट्यूशन पढ़ना शुरू करें और सर भी आपको 9 से 9:30 का टाइम ही दें, यानी कि 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपके पास में 2 ऑप्शन हो गए। रिसोर्स कौन सा है आपके पास में? टाइम रिसोर्स। वो लिमिटेड है कि वही 9 से 9:30। अब उसी में इकोनॉमिक्स की क्लास भी है और उसी में अकाउंटेंसी क्लास भी है। तो आप क्या करोगे? नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस। क्या हम इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करें या फिर हम अकाउंटेंसी क्लास अटेंड करें? और ये चॉइस जो होगी यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होगी? बिकॉज द टाइम रिसोर्स यू आर हैविंग इज लिमिटेड एंड इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज क्या हुए आपके पास में कि आपके पास इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो आप उसी टाइम में और अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हो। अगर एक ही यूज आपके पास है कि 9 से 9:30 तो सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, तो कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं हुई ना, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? व्हाट हैपेंस इफ द रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब एक प्रोडक्ट का एक रिसोर्स का एक ही यूज है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ही नहीं ना। प्रॉब्लम सम आउट हो गई सारी, सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम्स का। तो प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो अराइज ही नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब बात ये आती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, वो तो हमने पढ़ लिया। सभी इकोनॉमीज में वो भी हमने पढ़ लिया। तो क्या इनका सॉल्यूशन भी सभी इकोनॉमीज में सेम होगा? नहीं। अगर किसी कंट्री में मार्केट इकोनॉमी है तो वहां पे इसका सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। अगर किसी कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो वहां पे इसका सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। और जिस कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है लाइक इंडिया, तो वहां पे इसका सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम डिफरेंटली। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट इकोनॉमी अगर है तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालती है। कौन सी प्रॉब्लम का? द प्रॉब्लम ऑफ scarcity, alternative uses, and the problem of choice का। Which is the central problem of economy? 3 questions we discussed about the central problem of the economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce। तो इन तीनों क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम, उसी को हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और वो सॉल्यूशन अगर मार्केट इकोनॉमी में हम डील करें, मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था कि मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो डिस्टिंक्शन आपके बुक में दे रखा है उसको आप पढ़ना जरूर। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू कंज्यूम, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट फैक्टर्स ओनली। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे कितना कंजम्पशन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ऑल द मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो वो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। क्यों हम इसको फ्री इकोनॉमी कह रहे हैं? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है।
Market economy is a free economy. It means that producers are free to decide what, how, and for whom to produce. On what basis do they take their decisions? Yes, it is on the basis of supply and demand forces in the market. Producer whenever is free to take their own decision, and whenever producer is going to take any decision, it will always driven by the profit motive. जहां प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा वहीं पे प्रोड्यूसर अपना डिसीजन लेगा. So the producer will take decision on the basis of market forces, that is demand and supply. Producers will choose to produce those goods. क्या प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर? अभी अभी मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें उसे प्रॉफिट नजर आएगा वही प्रोडक्शन किया जाएगा. Producer will choose to produce those goods the prices of which are relatively high, so that their profits are maximized because they are interested in maximizing the profit. They will adopt that technique or of production or prefer to use those inputs, the prices of which are relatively low, so that the cost of production is minimized. Also, they will produce goods and services for those buyers who are willing to offer them better price. जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे सकेंगे उनके लिए वो प्रोडक्शन करेंगे भी नहीं. तो ये डिसीजन किस में लिया हमने? मार्केट इकोनॉमी में. लेकिन अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजंस. तो वहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से होगा उसे देखें आइए. सो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में क्या? दैट इज इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी decisions relating to what, how, and for whom to produce are taken by some central authorities appointed by the government. तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अपॉइंट करती है वो ये डिसीजंस लेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वगैरह, है ना. एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए डिसीजन नहीं लेती है. गवर्नमेंट ऑलवेज टेक्स डिसीजंस अकॉर्डिंग टू सोशल वेलफेयर. ठीक है. Unlike market economy, profit maximization is not the consideration. Those goods and services will be produced which the central authority, that is government, finds as most useful for the society. That technique of production will be adopted which is socially most useful. Is a situation in a situation of mass unemployment, for example labor intensive technology will be preferred. ठीक है. और लास्टली हम आते हैं कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में हम डिसीजन लें, सो हाउ वी आर गोना टेक डिसीजंस, या मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा. तो उसके लिए देखें, मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज. Decisions regarding what, how, and for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social considerations. तो यहाँ मार्केट फोर्सेस भी अपना रोल प्ले करती हैं और सोशल कंसिडरेशन, सोसाइटी का वेलफेयर भी कंसिडरेशन में रखा जाता है. In certain areas of production, producers are free to take their decisions with a view to maximize their profits. In certain other areas, decisions are taken entirely by on the basis of social consideration. For example, in India, producers are free to produce cloth or steel to maximize their profits, but railways are the monopoly of government. The government provides these services at nominal rates so that the poor people can afford to buy them. ठीक है. तो गवर्नमेंट भी होती है इसमें और सेंट्रल that is प्राइवेट सेक्टर भी होता है. Now comes the next topic, that is production possibility curve, which is the most important topic of this chapter, production possibility curve, जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास में किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं.